شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا أحد له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم. حضرات گرامی، میرے واجب الاحترام عزیزوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور اس کے بعد کروڑ درود و سلام ہوں سید ولد آدم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. جمعۃ المبارک کا یہ مبارک دن، یہ مبارک لمحات، یہ مبارک گھڑیاں میری طرف سے اور آپ سب کی طرف سے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر کروڑ درود و سلام. حضرات، ربیع الاول کا مہینہ، اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے لیے رحمت بنا کر تشریف لائے. عزیزوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کی بعثت اس کائنات کے لیے رحمت کی دعوت. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے آپ کو اس جہان والوں کے لیے، پوری کائنات کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. اور یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت جو ہیں اپنے پیارے حبیب، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خود تعریف بیان کرتے ہیں، خود ان کی مدح سرائی کرتے ہیں. اور جو تعریف اللہ نے میرے عزیزوں اپنے نبی کی ہے، وہ پوری کائنات کے لوگ مل کے نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت جو ہے وہ رب العالمین ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ اکرم الاکرمین ہے. اپنے نبی کی صفت، اپنے نبی کی تعریف بیان کرتے فرما رہے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے سب سے بلند مقام پر. اور میرے عزیزوں، آج میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اخلاق ہوتا کیا ہے. یاد رکھیے، ہر وہ اچھا کام، ہر وہ اچھی چیز جو انسان کرتا ہے وہ اخلاق کے ذمہ دار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں، کتنی آیات ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں اس بات کو حکم دیا ہے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا حکم دیا ہے، لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے. ارشاد فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، تم میں سے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا، اور کسی بھی شخص کو پرکھنے کے لیے سب سے بڑا پیمانہ ہے کہ اس شخص کا کردار کیسا ہے، اخلاق کیسا ہے. کردار کی بات آتی ہے تو یہ بھی اعلیٰ اخلاق کی نشانی ہے. ایک شخص ہے وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، وہ امین ہے، وہ صادق ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر نبوت ملنے تک، اور نبوت ملنے سے لے کر رفیق اعلیٰ کے پاس جانے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ بالکل پاک ہے، صاف ہے، ہر قسم کے انحراف سے، غلطیوں سے مبرہ اور پاک ہے. اور اسی لیے اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور میرے عزیزوں، جس وقت ہم نبی کے اخلاق کی بات کرتے ہیں تو اس بات کو ہمیں نہ بھولنا چاہیے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، آپ صفا پہاڑی ہے جس کے اوپر آج کل تو بہت سارے وہاں پر ہوٹل بن چکے ہیں. صفا پہاڑی کے اوپر آپ کھڑے ہوتے ہیں،
आपने एक एक कबीले का नाम लेकर बुलाया, बनु हाशिम को बुलाया, बनु अदी को बुलाया, बनु मखजूम को बुलाया, बनु असद को बुलाया, जितने भी कबीले थे बड़े बड़े सबको बुलाया, नाम लेके बुलाया। सब जब इकट्ठे हो गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बात पूछी। अपने पास साथियों ये बताओ, अगर मैं तुमसे ये बात कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो आपके ऊपर हमला आवर होने वाला है, क्या मेरी बात को मानोगे, तस्दीक करोगे या नहीं करोगे? उन्होंने उसके जवाब में क्या कहा? उन्होंने कहा था कि बिल्कुल तस्दीक करेंगे, इसलिए कि हमने आज तक आपको झूठ बोलते हुए नहीं सुना, आपने हमेशा सच बोले। और मेरे अजीजों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आप सबको जानते हैं, आपका जो सिफाती नाम था वो क्या था? आपको क्या कहा जाता था? सादिक। आपको क्या कहा जाता था? अमीन। ये सादिक आ गया, ये अमीन आ गया है। और मेरे भाइयों, किसी शख्स का आला अखलाक की अगर मिसाल देनी हो तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वो शख्स है जो हमेशा सच बोलता है, ये वो शख्स है जो ईमानदार है। और एक और मेरे भाइयों, जब हम अखलाक की बात आती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं तो हमें एक और बात जो है वो नजर आती है। नबूवत का मिलना अजीजों के ये कोई मामूली सा हादसा नहीं था, बहुत बड़ी बात थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए मेंटली तौर पर तैयार तो नहीं थे, बल्कि अचानक रमजान मुबारक के महीने के अंदर आपका गारे हरा के अंदर जाना और फरिश्ते का नाज़िल होना, जबरील का आना और इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ के आयात का नाज़िल होना, ये सारे वाक़यात पै दर पै। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो घबराहट के आलम में अपने घर तशरीफ लेके जाते। और सुभान अल्लाह, अगर घरवाली अच्छी औरत हो, वो भी साथ देने वाली हो, तो फिर मामले जरा आसान बन जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने घर तशरीफ ले जाते हैं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप जाके उनसे कहते हैं कि ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, खदीजा मुझको चादर उड़ा दो, मुझको चादर उड़ा दो। लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझको अपनी जान का डर है। और हमारी और आप सबकी माँ, उन्होंने जो जवाब दिया है मेरे भाइयों, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की सबसे आला मिसाल। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदा, अल्लाह की कसम आपको अल्लाह कभी भी रसवा नहीं करे। क्यों रसवा नहीं करे? फिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात बयान करती हैं, आपके अखलाक की गवाही देती हैं। और वो क्या कहती हैं? कहती हैं इन्नका तसिलुर रहम, आपकी सबसे बड़ी जो खूबी है वो ये है आप सिला रहमी करते हैं। मेरे अजीजों, अखलाक के हवाले से जब हम बात करेंगे, सबसे जो अहम सिर्फ इंसान के अंदर पाई जानी चाहिए वो सिला रहमी है, जिससे आज हम बड़े दूर हो गए हैं। याद रखिए, सिला रहमी के बड़े फायदे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बड़ी मशहूर हदीस है। आपने इरशाद फरमाया, मन अहब्बा अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही व युमसा लहू फी असरिही फलयसिल रहमहू। तुम में से अगर कोई शख्स ये चाहता है कि उसके रिज़्क़ में इजाफा किया जाए और उसकी उम्र लंबी हो या मरने के बाद उसका जिक्र खैर हो, इसके दोनों मफहूम है। व युमसा लहू, तो फरमाया फलयसिल रहमहू, उसको चाहिए कि वो सिला रहमी करे। मेरे अजीजों, मुझ समेत कौन ये बात नहीं चाहता है कि मैं भी चाहता हूं मेरे रिज़्क़ के अंदर इजाफा हो, मैं भी चाहता हूं मेरी उम्र लंबी हो, मैं भी चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद मेरा जिक्र खैर हो, लोग मेरे बारे में अच्छी बातें कहें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में हमें एक असूल समझा दिया। और वो असूल क्या है? फरमाया फलयसिल रहमहू, उसको चाहिए कि वो सिला रहमी करे। तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक की गवाही देते हुए फरमा रही है, इन्नका लतसिलुर रहम व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूम व तक्रिज़ ज़ैफ़। आप जिसको कोई नहीं पूछता है, आप उनको पूछने वाले हैं। आप लोगों को कमा के देते हैं। मेहमान घर में आ जाए उसकी इज्जत करते हैं, उसका एहतराम करते हैं। जिसके अंदर ये सिफात पाई जाती हो उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो कभी रसवा नहीं करता है। अज़ीज़ान मोहतरम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत मिलने से पहले आपके अंदर आप वो अखलाक के मालिक थे, वो किरदार के मालिक थे कि दुश्मन अपनी जगह है। मक्के वाले दुश्मनी तो करते थे, लेकिन जरा अंदाजा करें
کہ ساری دشمنیوں کے باوجود, ساری مخالفتوں کے باوجود, ذرا غور تو کرے عزیزوں, کہ دروازے کے باہر کھڑے ہیں, تلواریں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, انتظار کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر حملہ کیا جائے. لیکن کیفیت یہ ہے اس عالم میں بھی اپنی امانتیں جو ہیں وہ کس کے سپرد ہیں؟ محمد رسول اللہ کے سپرد ہیں. بھائی آپ نے حضرت علی سے کیا کہا تھا؟ آپ نے علی سے کہا تھا علی میرے بستر پہ سو جاؤ, میں ہجرت کرنے کے لیے مدینہ کی طرف جا رہا ہوں, تم ایسا کرنا کہ اگلے دن لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینے آتا. یہ تھے آپ کے رسول, آپ کے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ اخلاق کے سب سے بلند مقام کے اوپر فائز ہیں. اور میرے عزیزو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار صفتیں ہیں. آج مجھے یہ بات کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, ہمارے اندر جو کمزوریاں ہیں, جو خامیاں ہیں, اس کے اندر یہ ہے کہ ہمارے اندر اخلاق کی کمی ہے. مسکراہٹ, چہرے پہ اوپر مسکراہٹ, گلے ملنا, ایک دوسرے کو ویلکم کرنا. مجھے یاد ہے ہمارے ایک دوست ہوا کرتے تھے, کسی کے ساتھ مخالفت ہو جانا یہ اپنی بات ہے, اپنی جگہ ہے, لیکن عزیزو یاد رکھو, کچھ میں نے اپنی زندگی کے اندر بہت کچھ سیکھا, تجربات حاصل کیے. ان میں سے ایک تجربہ یہ بھی ہے, آپ کے پاس مہمان آتا ہے, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اٹھ کے کھڑے ہو جائیں, اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیں, اہلا و سہلا و مرحبا, جی آیا نو, ویلکم بھائی, آؤ بھائی آؤ, تشریف لائے ہو. آپ اندازہ کیجئے. اور ایک اور بات سنیں, اگر آپ کسی کو چاہتے ہیں کہ اس کو اپنا لیں, اس کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں, اس کے بڑے کی عزت کریں, اس کے بزرگ کی عزت کریں. اس کا اگر باپ آ جائے اس کو اپنے قریب کریں, اس کو ساتھ بٹھائیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ قربان ہوں, آپ کے اخلاق کی عالم یہ تھا کہ آپ کے ایک صحابی حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بجیلہ قبیلہ ہے ابہا کے علاقے میں. باہا ایک جگہ ہے, وہاں اس علاقے کے یہ رہنے والے تھے. مجھے اس علاقے کی سیر کرنے کا اتفاق ہوا ہے, میں گیا ہوں, ان کے گاؤں میں بھی گیا ہوں. جریر بن عبداللہ بجلی جو تھے یہ اپنے قبیلے کے سربراہ تھے, غیر معمولی ان کا قد لمبا تھا, اتنے خوبصورت کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کو دیکھا تو انہوں نے کہا اوہ یہ تو امت محمدیہ کا یوسف ہے, اتنے خوبصورت تھے. تو جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسلمان تو پہلے ہو چکے تھے, لیکن مدینے کا اور ان کے گاؤں کا بہت لمبا فاصلہ ہے. یہ مکہ مکرمہ سے بھی تقریباً 4-5 دن کا فاصلہ بنتا ہے یمن کی جانب. خیر ایک وقت آتا ہے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے اپنے ساتھ 70 کے قریب صحابہ کرام کو, مسلمانوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں. اور جس وقت آپ مدینہ شریف پہنچتے ہیں, ابھی آپ مسجد نبوی میں داخل نہیں ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو ان کے بارے میں بشارت دی. اور بشارت کیا دی؟ آپ نے فرمایا کہ لوگوں ابھی تھوڑی دیر کے بعد تمہارے اوپر ایک ایسا شخص داخل ہونے والا ہے جو یمن کا سب سے بہترین آدمی ہے, خیر ذی یمن. اور فرمایا کہ اس کے چہرے سے سرداری جھلکتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ بڑے وجیح شکل کے ہوتے ہیں, اور جس وقت داخل ہوتے ہیں مجلس کے اندر یا کس سے ملتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ غیر معمولی صلاحیتوں کا آدمی ہے. تو حضرت جریر بن عبداللہ بجلی کہتے ہیں کہ جس وقت میں مسجد میں داخل ہوا تو صحابہ کرام نے میری طرف دیکھنا شروع کر دیا. کہتے ہیں میرے ساتھ جو آدمی بیٹھا ہوا تھا, میں نے اس سے پوچھا کہ کہیں میرے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ذکر تو نہیں کیا ہے کہ تم سب لوگ میری طرف دیکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا, صحابی نے کہا کہ ہاں ذکر کیا ہے اور بڑا اچھا ذکر کیا ہے. اور پھر حضرت جریر بن عبداللہ بجلی کہتے ہیں کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکات و النصح لکل مسلم. آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی, کس چیز کی؟ نماز ادا کرنے کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی.
वन्नुस्ह लिकुल्लि मुस्लिम, हर मुसलमान के साथ खैर खाई करने की मैंने बैत की। अल्लाह के रसूल के साथ मैं वादा कर रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल जब तक जिंदा रहूंगा हर मुसलमान के साथ खैर खाई करूंगा। मेरे अजीजों, क्या ये हकीकत नहीं है? अखलाक की जो आला तरीन मिसाल है वो ये है कि हम एक दूसरे के साथ खैर खाई करें। और फिर देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ किस तरह अखलाक से पेश आते, किस तरह उनके साथ मोहब्बत करते। यही जरीर बिन अब्दुल्लाह बजरी कहते हैं कि मा हजबानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुन्ज़ु अस्लम, कहते हैं कि जब से मैंने इस्लाम कबूल किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुझको मिलने से नहीं रोका। मैंने जब भी चाहा आपसे मुलाकात करनी, कभी आपने ये नहीं कहा कि मैं मसरूफ हूं जरीर फिर कभी आ जाना। नहीं, हमेशा मेरे लिए आपने दरवाजे को खोले रखा। हमेशा जब भी चाहा आपने मुझसे कहा कि आ जाओ जरीर, मुलाकात करने के लिए हाजिर होते हैं। और फिर अगली बात जो है वो हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह की सुनने वाली है। कहते हैं कि जब भी मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे होते थे। अजीजों, ये एक शहादत नहीं है, ये शहादतें ही शहादतें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेशुमार खूबियाँ मैंने अपनी ज़िंदगी में पढ़ी हैं, उसके अंदर ये है कि आप आमदुन्नास के लिए, गरीबों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, औरतों के लिए, जिनको कोई नहीं पूछता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका बेगरे से लगाते थे। आइए एक हदीस सुनते हैं। आपने फरमाया अबगूनी फी ज़ुअफ़ाई, लोगों अगर तुमने तलाश करना है तो मुझको किन के अंदर तलाश करो? जो ज़ईफ हैं, जो कमजोर हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं। बड़ी पुरानी बात है, मैं एक दफा फ्रांस में था, वहां पर कुछ लोगों ने मुझे एक लिटरेचर दिया, कोई मेरा ख्याल है इस बात को 20-25 साल गुजर रहे हैं। कहने लगे जी कि देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्होंने एक मजमून लिखा है, उसमें तस्वीर भी बनाई गई थी तखय्युलाती। बहरहाल कतई नजर मैंने कहा कि चलो मैं इस मजमून को पढ़ता हूँ। इंग्लिश में था वो मजमून लिखा। उस मजमून के अंदर जो बात, मजमून का काफिर था जिसने लिखा हुआ था, उसने जो बात लिखी वो मुझे पसंद आई और मैं आपके सामने उसको शेयर करना चाहूँगा। और वो ये थी कि इस नबी का इनकार कैसे हुआ। ये कैसे हो गया यार कि मक्के वाले जो हैं उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखालफत के बाद आखिर कबूल किया ना। तो उसने कहा, मजमून नगार ने कहा कि उनकी एक खूबी ये थी कि आपने उन लोगों को जो माशरे के पिटे हुए लोग थे, जिनको कोई पूछता नहीं था, जो गुलाम थे, जो गरीब थे, जो ज़ईफ थे, उनको आपने उठाया, उनको अहमियत दी, उनको गले से लगाया, उनको अपने करीब किया। इस वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकलाब कामयाब हुआ। अब आइए हदीस सुनते हैं। आपने इरशाद फरमाया अबगूनी फी ज़ुअफ़ाइकुम इन्नमा तुरज़क़ून व तुनसरून बिज़ुअफ़ाइकुम, लोगों अगर तुमने मुझको तलाश करना है तो किन में तलाश करो? जो गरीब हैं, जो मस्कीन हैं। और फरमाया फ़इन्नमा तुरज़क़ून व तुनसरून बिज़ुअफ़ाइकुम, तुम्हें जो रिज़्क़ दिया जाता है, तुम्हारी जो मदद की जाती है, वो किसकी वजह से? जो ज़ईफ हैं, उन ज़ईफ या कमजोर लाचार जो है, उनकी दुआओं की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है तुम्हारे रिज़्क़ के अंदर बरकत दे देते हैं, तुम्हें कामयाबियां अता कर देते हैं। मैंने आज के खुतबा जुमा में अपने अजीजों को जो पैगाम देना चाहता हूँ वो ये है, मेरे अजीजों, कभी कभार ये जो गरीब लोग हैं जिनको आम आदमी कुछ नहीं पूछता, कोई उनसे गले नहीं लगाता, कोई उनके घर नहीं लेके जाता, कभी कभार उनको अपने घर लेके जाए, कभी कभार उनके साथ बैठा करें, शेयर करें, उनके दुख दर्द, उनके मसाइल सुने, आपकी परेशानियां क्या है, आपके क्या मसाइल हैं। यकीन जानो कि ये वो लोग जो हैं जिनको माशरा नहीं को अहमियत देता, अगर आप उनको सीने के साथ लगाएंगे, उनकी दुआओं की बदौलत जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मुश्किलात को दूर फरमाएंगे। और मेरे माँ बाप कुर्बान हों कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अमरी तौर पर भी करके दिखाया। किसी की शक्ल खूबसूरत नहीं है, किसी के पास माल दौलत नहीं है,
कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने सीने से रखा, उनको अपने करीब किया। मदीना शरीफ के शमाल की जानब बनु गतफान का कबीला रहता था, बड़े बहादुर, बड़े जंगजू। लेकिन हर कबीले के अंदर कुछ लोग जो हैं वो कमज़ोर भी होते हैं, कुछ गरीब भी होते हैं। एक आदमी था, उसका नाम था ज़ाहिद बिन हज़ाम। ज़ाहिद बिन हराम ये कान दमीम, शक्ल सूरत कोई अच्छी खूबसूरत नहीं, लेकिन गरीब आदमी था। और उसका काम यह था कि वो अपने बद्दू इलाके में से कुछ चीज़ें जमा करता, कुछ सत्तू ले आता, कुछ शहद ले आता, कुछ देहात की कुछ साग ले आता, जैसा देहात की सौगातें होती हैं, और वो ला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। और मैं इसमें इजाफा करना चाहूँगा कि उसकी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन पता क्या थी? वो ये थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ मोहब्बत करते थे। वो अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता था और अल्लाह के रसूल उसके साथ मोहब्बत करते थे। एक दफा ऐसा हुआ कि ज़ाहिद बिन हराम आते हैं मदीना शरीफ के अंदर, तो अपनी आदत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर। आप घर पे तशरीफ फरमा नहीं थे, उसने वो अपनी सब्जियां या अपनी चीजें, याद रखिए मैं अपनी इजाफा करना चाहूंगा, आपने अपनी उम्मत को अपाहज नहीं बनाया, मांगने वाला नहीं बनाया, बल्कि आपने अपनी उम्मत को देने वाला बनाया। आपने फरमाया कि अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, जो देने वाला हाथ है वो लेने वाला हाथ से बोलो बेहतर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी, अगर आप गए हैं वहां पर, तो अगर आप खड़े हों बाब मलिक फहद के सामने, तो राइट तरफ, दाएं तरफ, बाएं तरफ बकील गरकत बनता है, वहां को उसके पीछे बनु कैनका का बाजार था। दाएं तरफ मनाखा का एक बहुत लंबा, मैंने इसके ऊपर बड़ी स्टडी की है, तो मनाखा ये कई किलोमीटर लंबी जगह थी। यहाँ पे आपने बाकायदा बाजार बनवाया था कि लोग आए, ताजर आए, वहां पे तजारत करें, अपनी चीजें फरोख्त करें। ये जो ज़ाहिद बिन हराम है, इसने भी अपनी पोटली उठाई तो उस बाजार में चला गया, मनाखा के बाजार में चला गया, उसने आके जाके वहां पे अपनी चीजें फरोख्त करनी शुरू कर दी। देहाती आदमी बूढ़ा, वहां के हालात से बिल्कुल नावाकिफ, किस तरीके से प्रोटोकॉल क्या होते हैं, कारोबार कैसे किया जाता है, वो खड़ा है, वो अपनी चीजें जो है उसके सामने। तो मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बाजार में, मनाखा के बाजार में तशरीफ लाते हैं। आपने देखा कि मेरा दोस्त यहाँ पे खड़ा है, आप पीछे से आए। अब तो वो हालात बदल गए, ज़रूफ बदल गए। अब वो जवानियाँ, वो बचपन जो है, जब हम बचपन में खेला करते थे ना, तो पता क्या होता था, जो हमारा करीबी दोस्त होता था वो पीछे से आता था और आके हमारी आंखों के ऊपर क्या करता था, हाथ रख के, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ। ये मोहब्बत का एक इज़हार होता था कि मैं तेरे साथ प्यार करता हूँ। और फिर वो पता क्या कहता था, कहता बताओ मैं कौन हूँ। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, वो ज़ाहिद बिन हराम जो है वो खड़ा है, तो आप पीछे से आते हैं, आपने आके पीछे से उसकी आंखों के ऊपर हाथ रखे। ये मोहब्बत का इज़हार है कि नहीं? और मैंने अर्ज़ किया, कान दमीमन, खूबसूरत नहीं था, मानो दौलत भी नहीं थी, पैसा नहीं था, शक्ल सूरत नहीं थी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि आओ तुम्हें बताते हैं कि दुनिया वालों सुनो, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है। हम उस हदीस की तरफ वापस जाएंगे जो उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा ने आपके बारे में फरमाया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी आंखों के ऊपर हाथ रख लिया। अब वो अचानक परेशान हो गया, उसने कहा कौन है जिसने मेरी आंखों के ऊपर हाथ रखे हैं? और फिर नबी अलैहिस्सलाम के हाथ मुबारक जो है, उनका लफ्ज, आपके हाथ इतने ज्यादा नर्मो नाज़ुक थे कि हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक जो हैं वो रेशम से भी ज्यादा नरम थे। आपका लम्स, आपकी खुशबू, उसको पता चल गया।
कौन है? उसने पता क्या किया? उसने अपनी पुष्ट को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक के साथ मलाना शुरू कर दिया, रगड़ना शुरू कर दिया बरकत के लिए। और नबी अलैहिस्सलाम जो है, आपने उसके कानों को इस तरह पकड़ के कहा, मैं यश्तरी हाज़ल अब्द, फरमाया लोगों कौन है ये इस गुलाम को खरीदे? कैसे इस गुलाम को खरीद रहे? मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, अपने साथी के साथ मोहब्बत और प्यार का इजहार किया जा रहा है। और उसने कहा कि जो भी मुझे खरीदेगा बड़ा घाटे का सौदा करेगा। क्यों घाटे का सौदा करेगा? इसलिए कि मैं तो बिल्कुल नकम्मा आदमी हूं, न मेरे पास हुस्न है, न जवानी है, न खूबसूरती है, न माल है, न दौलत है, न मेरे पास इल्म है, मुझको किसी ने लेकर क्या करना। लेकिन मेरे अजीजो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में क्या फरमाया? आपने अच्छा फरमाया, वलाकिन लैसा इंदल्लाहि कासिदा। आपने फरमाया कि तू अल्लाह के यहाँ निकम्मा आदमी नहीं है, बल अंत गारिन इंदल्लाह, तू अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा, इंतहाई ज्यादा पसंदीदा और महंगा आदमी। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क्या फरमा रही हैं? फरमा रही हैं, व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूम व तक्रिज़ ज़ईफ़ व तईनु अला नवाइबिल हक, कि जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, जिनकी कोई मदद करने वाला नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके साथ उसने सलूक करने वाले, उसको अपने करीब करने वाले। और मेरे अजीजों, एक और बात जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहूँगा वो ये है, आपने उन तमाम इम्तियाजी सलूकों को ख़त्म करके रख दिया जो बड़े और छोटे के दरमियान। बदर के नबी अलैहिस्सलाम जब रवाना होते हैं, अब सबके इल्म में है 313 आदमी थे आपके साथ, 70 ऊँट थे सिर्फ, और ऊँट के ऊपर 2 आदमी से ज्यादा आदमी नहीं बैठे, इसलिए कि ऊँट जो है वो ऐसा ऐसा चलता है। 3-3 आदमी जो है वो इससे आदमी आते हैं। तकसीम की गई कि हर ऊँट के ऊपर 3-3 आदमी बैठेंगे, बारी बारी बैठेंगे, एक आदमी आगे बढ़ेगा, अपना चलाएगा उसको, उसकी नकेल पकड़ेगा, और 2 आदमी ऊपर बैठेंगे। अब यहाँ पे कायदे आला कौन है? इस लश्कर के सरबराह कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आपके साथ हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अबू लुबाबा, तो आपके साथ, और तीसरे आप हैं एक ऊँट के ऊपर, आपके ऊपर भी एक ऊँट जो है उसको तकसीम किया जाता है। रास्ते में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ ऊपर बैठे हुए हैं। जब आपकी बारी आई तो आप नीचे उतर गए। अब जब नीचे उतरे तो दूसरे साथियों ने कहा, कहने लगे कि ऐसा है कि हम आपकी जगह पैदल चलते हैं, आप पैदल न चले, आप ऊपर बैठे रहें। जिस तरह आम सी बात है ये, आप किसी बड़े को इज्जत देना चाहते हैं तो क्या कहते हैं? नहीं जी कोई बात नहीं है, आप बैठे, हम है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही वो सुनने वाली। मैंने पहले अर्ज किया कि आपने उस तफावत को, उस फरुकात को, बड़े और छोटा का, उस फर्क को खत्म करके रखा। और ये वो मिसाल है, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। मैंने पहले अर्ज किया कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अखलाक क्या होता है। अखलाक हर वो नेक काम, हर वो अच्छा काम जो आदमी करता है वो अखलाक के निज़ाम है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने इरशाद फरमाया कि मा अंतमा बिअक़वा मिन्नी अला सैर। साथियों ने कहा ना, आप फर्दी, उन्होंने, अल्लाह के रसूल आप तशरीफ रखे ऊपर, हम आपकी जगह पैदल चलते हैं। आपने फरमाया कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो, कि मैं कमजोर हूं कि मैं कहूं कि मैं ऊपर बैठता हूं, नहीं, मैं भी ताकतवर हूं, मैं भी चल सकता हूं। और दूसरा जो आपने इरशाद फरमाया, वला अना बिअग़ना मिनकुम अनिल अज्र, फरमाया जिस तरह तुम्हें अजर व सवाब की जरूरत है, मुझे भी अजर व सवाब की, बोलो, ये है मेरे भाइयों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आपका अखलाक, आपका किरदार, आपने किस तरीके के साथ लोगों के अंदर। और मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ
कि आपने लोगों के सरों पर हुकूमत नहीं की है, अपने दिलों पर हुकूमत की है। आपने अपने साथियों को करीब किया, साथी आए हैं उनके लिए जगह छोड़ दी है। और मेरे अजीजों, मेरे माँ बाप कुर्बान हों कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आज भी अगर हम मुसलमान अपना लें, आपके अखलाक को, आपके किरदार को, आपके हुस्न तामल को, किस तरीके के साथ आपने बच्चों के साथ, मैं कई दफ़ा सोचता हूँ हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार से गुजरे, गली में से गुजरे तो देखा बच्चे खेल रहे, आपने उनसे क्या कहा, अस्सलामु अलैकुम। छोटे छोटे बच्चे, कई दफा मैं अपने आप को सोचता हूँ, मैं कहता हूँ अपने आप को, अब्दुल मालिक कभी ऐसा हुआ है, और आप भी कभी सोचे कि बच्चे खेल रहे हों आपकी गली के, आपके मोहल्ले के, आपके जानने वाले, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने उनसे कहा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह माज़रत के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम कोशिश करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के ऊपर अमल करें, लेकिन मेरे नबी ने मुझको जो सिखाया है वो ये तालीमात दी हैं कि अगर आपके मोहल्ले के बच्चे या अगर बच्चे खेल रहे हों तो आप उनको सलाम कहिए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये यहूदी थे, तो जिस वक़्त आप तशरीफ़ ले गए हैं हिजरत करके मदीना शरीफ, तो मदीना शरीफ जाने से पहले आप रास्ते में कुबा नामी बस्ती है, अब भी छोटी सी बस्ती है, बहुत बड़ी नहीं है, अब तो मदीने का हिस्सा बन चुकी है, आपने वहाँ पर कुछ दिन क़याम किया। तो जिस वक़्त आप कुबा के अंदर क़याम फरमा थे तो लोगों ने मदीना शरीफ के अंदर, जिसका नाम उस वक़्त यसरब था, शोर मच गया। लोगों ने कहा जा रसूलुल्लाह, जा नबीउल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लम आ गए, रसूलुल्लाह सल्लम तशरीफ ले आए। लोग जोक दर जोक मिलने के लिए कुबा आ रहे हैं। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये यहूदी थे, और यहूदियों के ये बड़े आलिम दीन थे, तो कहते हैं कि मेरे दिल के अंदर आया कि मैं भी उनके साथ मुलाकात करूँ, मैं भी उनको देखना। चुनांचे जिस वक़्त वो कहते हैं कि मैं आया तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऊँटनी के ऊपर सवार थे और आपके इर्द गिर्द लोग जमा थे, आप लोगों के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। कहते हैं कि जब मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस को देखा तो कहते हैं कि मैंने देखते हुए कहा कि हाज़ाल वज्हु लैसा बिकाज़िब, कहते हैं कि ये किसी झूठे का चेहरा नहीं, ये सच्चे का चेहरा है। और उसके बाद कहते हैं कि मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तालीमात दे रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, अय्युहन्नास अफ़शुस सलाम, लोगों सलाम कहा करो, सलाम सलाम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अफ़शुस सलाम, सलाम को आम करो, वो अतिमुत ताम, वसिलुल अरहाम, लोग जो गरीब हैं, मस्कीन हैं, उनको खाना खिला करो, वसिलुल अरहाम, और सिला रहमी किया करो, वसल्लु बिल्लैलि वन्नास नियाम, लोगों रात के वक्त जब दूसरे लोग सो रहे होते हैं तो क्या करा करो, और के तहज्जुद पढ़ा करो, क़यामुल लैल किया करो। अजीजों में आप सभी को कभी कभार उठा करें, न सही हमेशा, लेकिन अल्लाह तौफीक दे हमेशा उठने की आदत डाले, लेकिन कम अज कम महीने के अंदर 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा कभी उठे, न सही 8 रकते पढ़ने, 2 रकते पढ़ने, 4 रकते पढ़ने। और मेरे नबी की हदीस जो है उसको तकमील करते हैं। आपने इरशाद फरमाया अय्युहन्नास अफ़शुस सलाम व अतिमुत ताम वसिलुल अरहाम वसल्लु बिल्लैलि वन्नास नियाम तदखुलुल जन्नता बिस्सलाम। ये अगर अच्छी आदतें, ये अच्छे अखलाक अपना लोगे तो क्या होगा, तदखुलुल जन्नता बिस्सलाम, सलामती के साथ जन्नत में दाखिल होगे। मेरे नबी की बड़ी बातें हैं, आपके तस्करा, आपकी हदीस, आपके वाक़यात इतने ज़्यादा हैं मेरे भाइयों कि मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ, इस कायनात के अंदर कोई ऐसी शख्सियत नहीं हुई है जिसके बारे में सीरत नगारों ने इतनी तफसील के साथ लिखा हुआ हो। मैं जिस इदारे के साथ ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरे लिए शरफ़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह असर हाज़र में तकरीबन हमने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कम से कम 65 से ज़्यादा किताबें शाया की। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 11 जिल्दों के अंदर एक इंसाइक्लोपीडिया उर्दू के अंदर शाया किया है, जिसके अंदर मेरा ये तरीका था, मेरा मौक़िफ़ था, मेरा ये प्लान था कि इसके अंदर सिर्फ उन्हीं वाक़यात को लिखा जाएगा जो बिल्कुल दुरुस्त हैं, सही हैं,
اور अहादीस से साबित शुदा हैं। अल्लाह के फजल व करम से उसके ऊपर हमें 7-8 साल लग गए, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह छप चुका है। सीरत का इंसाइक्लोपीडिया सिर्फ मैं आपको ये फ़ख्र के साथ तो नहीं कहूँगा, इज्ज़ के साथ, इनकिसारी के साथ, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए आपको इसमें शेयर करते हुए कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हम फ़कीरों से, हम नकारों से, हम कमज़ोरों से ये बहुत बड़ा काम लिया, जिसके ऊपर उलमाए किराम की बहुत बड़ी टीम थी, और एक एक लफ्ज़ को, एक एक सतर को अल्लाह के फज़ल व करम से उसको चेक किया गया, पढ़ा गया, उसको परखा गया, उसको देखा गया कि उसके अंदर कहीं कोई गलती ना हो। तो मैं बहरहाल इस मौके पर अल्लाह ताला से ये दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हम सब की सादतों को, खुशियों को कबूल फरमाए, नेकों को कबूल फरमाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमें अता फरमाए, आपके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। साथियों, यहाँ पे आके बड़ी खुशी हुई है। साथियों ने मुझे तफसील के साथ बताया किस तरीके से इस मस्जिद का आगाज़ हुआ, किस तरीके से, किस मोहब्बत के साथ, किन रुकावटों के साथ आपने इस जद्दोजहद को आपने शुरू किया है। मैं आपको मुबारकबाद देने के लिए आया हूँ, मैं आपके हौसले बढ़ाने के लिए आया हूँ, मैं आपको ये कहने के लिए आया हूँ कि मेरी दुआएं इंशाअल्लाह जो मुझसे तौफीक होगी मैं आपके साथ मादी एतबार से भी शेयर करूँगा और आपके लिए दुआएं मांगता रहूँगा। आप यही समझिए कि मैं आपका एक भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ, उम्र के लिहाज से कह सकता हूँ। तो बहरहाल इंशाअल्लाह हम आपके साथ हैं, दिल जान के साथ हैं। मैं आपको तरजीह देता हूँ, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। मैं अभी कह रहा था कि बदर इस्लाम गरीबन फसयऊदु कमा बदहा। इस्लाम, अहले तौहीद, अहले अकीदा जो हैं हर जगह थोड़े होते हैं, मुख्तसर होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी कुव्वतें जो हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारे अमीर यहाँ पे जनाब मोहम्मद असलम साहब और उनके रफ़ीक़ाए किराम, ये अबरार साहब हैं, ये जितने नौजवान बैठे हुए हैं हंसते मुस्कुराते, ये रोशन चेहरे, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। मैं अपने अल्लाह से दुआ करता हूँ, इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। या अल्लाह, ये नौजवान थे, इन्होंने मेहनत की, इन्होंने कोशिश की, इन्होंने तेरे अकीदा को बुलंद करने के लिए एक छोटा सा आगाज़ किया है। अल्लाह तो इनकी कुव्वतों को, इनकी ताकतों को और हिम्मत इनको बख्श दे, और अल्लाह इसको कबूल फरमा, और अल्लाह तो अपने रहमत से, अपने फजल व करम से इनको तक़वियत अता फरमा, इनकी मदद फरमा। और अल्लाह ये मरकज़ आज जो छोटा सा हमें नजर आता है, अल्लाह इसको वुसअत अता फरमा, इनको माली वसाइल अता फरमा, इनके रास्ते में जो रुकावटें हैं उनको दूर फरमा। और अल्लाह वो वक्त आए कि एक बड़ी जामिया मस्जिद जो है उसके अंदर हमारे भाई जो हैं वो जुमे की नमाज या दूसरी नमाजें पढ़ने के लिए इकट्ठे होते रहे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन वल मुमिनात व अतूबु इलैहि व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तनाबहु। अल्लाहुम्मा सब्बितना अलल इस्लाम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिनूरिल ईमान। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुमिनीन वल मुमिनात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा ला तदा लना फी मक़ामिना हाज़ा ज़ंबन इल्ला गफ़रतहु वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतहु वला दैनन इल्ला क़ज़ैतहु वला मरीज़न इल्ला शफ़ैतहु वला मय्यतन इल्ला रहमतहु। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा
وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.